हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नज़र आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। और ये सब तब होगा जब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। We will discussion most important question paper here. Class 10 CBSE NCERT Social Science here. You know that social science is the most important subject and tough subject. Tripan Study Center take a most important question for the exam view here, and the question is important. The next question arrive here. There's the most important here. Mention any two reasons to state that India is a federal country. You know that is an important question for the exam view here. Mention any two reasons to state that India is a federal country. That's an important question here. The following are the reasons to state that India is a federal country. That's important here. First of all here, the federal is the most important features here. Division of power. Division of power, that is the most important, the features of federal country. The Constitution of India, clearly democrat. The power of the center and state governments both have their separate area of jurisdiction. That's important here. The 7th schedule of Indian Constitution lists the union list, state list and concurrent list, which define their power and responsibility of central and state government. Division of power, there is the most important feature of federal government here. That's important. The Constitution of India is clearly democrat. The power of the central and state government. Central and state government, and both have their separate area of jurisdiction. And 7th schedule of the Indian Constitution, list of the union, list of there is the state, and the list of the concurrent, which define the power and responsibility of the central and state government. That's important division of power here. The next here, independent judiciary here. That's important here. Independent judiciary here. India has independent judiciary, which there is the power of judicial review here. You know what is important? Independent judiciary here. The Supreme Court of India is the highest judiciary, is the authority in the country and has two power to interpret their constitution and resolve debt between the central and the state government. That's important here. The next here, representation of state. That's important here. Representation of state. The Rajya Sabha, the upper house. Rajya Sabha, there is the upper house of the Indian Parliament, represent the state and union territory of India. The Rajya Sabha is the upper house and Lok Sabha is a lower house.
द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दैट्स इंपॉर्टेंट है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा elected their elected member of the legislative assembly of the state and union territory. This factor contribute to the India being a federal country where a power is divided between the center and state government. That's important here. The power is divided here, the federal government between center and state government. That's important 3 point here for the exam view here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर यानी पेपर के अंतर्गत जो है क्वेश्चन आंसर है, और ये पेपर का सलूशन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि ये बताने की कोई 2 कारण बताइए जैसे भारत एक संघीय देश है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत एक संघीय देश है यानी भारत एक फेडरल कंट्री है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, और आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है पेपरों के अंतर्गत क्वेश्चन लेके आया है, और ये क्वेश्चन के साथ MCQ भी रहता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। तो आपको ये चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला रुकेगा नहीं, एग्ज़ाम तक हर एक सब्जेक्ट का चलता ही रहेगा, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इससे बेटर कहीं नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत एक संघीय देश है, आपको इसके बारे में बताना है। यह बताने के लिए निम्नलिखित कारण भी है कि भारत एक संघीय देश है। सबसे पहला कारण तो यही बनता है शक्तियों का विभाजन। कोई भी देश अगर संघीय देश है तो वहाँ पर शक्ति एक के पास नहीं होता है, इनकी शक्तियाँ जो है विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट साफ बताता है कि शक्तियों का विभाजन। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का सीमांकन करता है। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है, और दोनों के अधिकार क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं। केंद्र का भी अपना अलग क्षेत्र होता है और राज्य सरकार का भी अपना शक्तियों का अलग क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार जो है पूरे भारत को संभालती है और राज्य सरकार जो है अपने राज्यों को पूरा देखभाल करती है। तो यहाँ पर शक्ति एक के हाथ में न होके शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत एक संघीय देश हो सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित में देखा जाए तो 7वीं अनुसूचित बनाई गई है, उसमें 3 बातों का प्रावधान रखा गया है। संघीय सूची, राज्य सूची और समयवर्ती सूची जो सूचीबद्ध की गई है, और ये एक फेडरल यानी एक संघीय देश का एक विशेषता है जो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। देखिए ये जो हमारे 7वां अनुसूचित है, संघ सूची, राज्य सूची और समयवर्ती सूची, इसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार की सारे शक्तियों और जिम्मेदारियों को जो है परिभाषित करती है, जिम्मेदारियों को बताती है, शक्तियों को भी बताती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट जो है संघीय बनाने के लिए पर्याप्त है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए ये संघीय देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्याय समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी व्यवस्थित किया गया है, इसलिए भारत संघीय देश हो सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और इसके पास संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने की भी शक्ति दी गई है। तो देखा जाए स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक संघीय देश को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संघीय देश होने के लिए। उसके पश्चात आता है राज्य का प्रतिनिधित्व। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य का प्रतिनिधित्व। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा। देखिए भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा होती है, और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखा जाए तो भारतीय संसद जो है ऊपरी सदन हमारे देश के केंद्र और शासित प्रदेशों और भारत के राज्यों का जो है प्रतिनिधि करता है।
राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ये कारक भारत को एक संघीय देश बनाने में योगदान भी करते हैं, जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित करती है। इसलिए ये बात साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारत एक संघीय देश है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व अलग अलग रूपों में की जाती है और देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। तो ये सारी बातें जो है किसी संघीय देश में ही हो सकती है, और इसीलिए भारत जो है एक संघीय देश के रूप में कहना गलत नहीं होगा, और इन सब कारणों से भारत एक संघीय देश बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं राज्य की अपनी शक्ति है, केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी जिम्मेदारी है और केंद्र की अपनी जिम्मेवारी होती है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सबके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो ये बात जो है भारत को संघीय देश बना देता है। दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। तो इसको लिखिए, समझिए, देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो को देखिए, एकांत में देखिए, शांति मन से देखिए। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो सोचना नहीं है, इसको जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप एड्रेस पर जरूर लगाना है, जिससे दूसरे बच्चे भी इसे देख सके, समझ सके। क्योंकि जर्नल सी बात, एक बात याद रखिएगा, दूसरे बच्चे का केयर ही तिरपान सेंटर का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि शेयर ही केयर बनता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।